अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फेम सिटी हॉस्पिटल जो वाक़ई शेखपेट पर है, यहाँ पर चिल्ड्रंस यानी बच्चे और ख़वातीनों का इलाज होता है। ये बच्चे और ख़वातीनों का स्पेशल हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, कैसे बच्चों की हिफाजत की जाए, किस तरह से बच्चों को देखा जाए, बच्चों का केयर किया जाए, किस तरह से ख़वातीनों को अपना ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ों पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा कई ऐसे टीचर्स और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दूसरे लोग हैं, उनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनका मकसद और मंशा यही था कि बच्चों को पहले एजुकेशन देना ज़रूरी है, पढ़ाई की तरफ उनको तवज्जो दिलवाना ज़रूरी है। ये काम पेरेंट्स का है। जितना पेरेंट्स बच्चों पर तवज्जो देंगे उतने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। लापरवाही हमारे सब में बड़ी गलती हो रही है और यही वजह है कि बच्चे गलत चीज़ों में जा रहे हैं, गलत सोबतों में पढ़ रहे हैं। इसके लिए बच्चों पर नज़र रखना ज़रूरी है और बच्चों को तालीम की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। यही मकसद से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पर इस हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार की जानिब से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है और कई लोग यहाँ पर पहुँचे थे। बहरहाल बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। Yeah, thank you. So I am Pallavi, Sub Inspector of Police from Tilinagar Police Station. Thank you for inviting me as a guest. Actually, Santosham sir, Inspector Tilinagar has to come, but he is little busy in some other work. So sir asked me to come and participate in this event. I am so grateful. It is looking that even in a hospital, these events are conducted so that all of you can come together and speak to your city hospital that they are doing all of this. As we know, the healthcare department and police department and all other departments of our country, right? So, FemCity is one of the hospital which is situated in Tilinagar, which we go hand in hand for the benefit of the citizens. So we have a very good relation with FemCity and I'm so glad to be here. Thank you so much for inviting me. Thank you. You all, thank you for being part of this event. Respected Riaz Nagman Mufti Maulana Riaz Naqshbandi Sahab, Damat Barakatum, very honored to have your presence over here. Madam Pallavi, thank you so much for making this event, gracing me with your presence. Thank you so much. Harini ma'am, Dr. Sarita, Elimira madam, our beautiful pediatric consultant team, Dr. Jyoti, Dr. Reshma, and all the other guests from various schools from this area. We are truly honored to be hosting all of you for today's event. Child psychology, issues related to child behavior, etc. How to identify, how to screen, where as FemCity we can support in the cause for development of children. Because as you all would know that FemCity is dedicated towards ID play a pivotal role. Education is basically the sole thing which differentiates mankind from all other beings on this planet. Our ability to learn,
our ability to understand, and then our ability to teach what we understand. This is basically the most powerful thing which has resulted, initiated, pushed this growth of the human race. So teachers play a very pivotal role in building. I mean, see, because you are some part of the world. So teachers are the people who are educating of people, and you will also rest is going to be doing in the coming times. It is extremely important. Next, Fatima Budul ma'am, Hidayat Ali Khan sir. Syed Arif sir, Principal Alliance International High School. Arif sir, Ashfaq sir. Mudassir sir, Principal. Mohammad Sajid sir, Government High School. Sayyida Shab. Okay. Thank you. इधर देखिए School. New Rosary. Director, Little Paradise High School. Mudassir sir, Vice President. Sayyida Farid Fatima ma'am, Government High School. Nasreen Sultan ma'am, Vice President. New Rosary High School. Sami. I request Umdad Unisa Rakshanda, Star Global School, the responsible person from the school to collect the certificate. जमाल साहब इधर भी आए भाई है वो। अब डॉक्टर जो है स्पेशलिटी रखने के बावजूद भी गैर जरूरी तौर पर जो है ये टेस्ट इंसान को इतना मुब्तला कर दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है। तो फिल्म सिटी के इस मंच के ज़रिए से, इस स्टेज के ज़रिए से मैं अब तमाम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि आज माशरे के अंदर होटलिंग का मामूल बहुत ज़्यादा हो गया है। बाहर खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और ये बाहर के खानों को बंद करना है। आपको मालूम है घर के अंदर जो लेडीज़ हमारी माँ, हमारी बहन पकाती है, वो बाहर के खानों में सब कुछ मिलता है लेकिन माँ की ममता नहीं मिलती, माँ की दुआ और बहन और जो है घरवाली यानी घर की ख़वातीन की दुआ उसके अंदर नहीं रहती। तो बाहर की होटलिंग हमको ख़त्म करना है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं। बच्चों को खाने का भी उनको सही ढंग सिखाएं, बात करने का सलीका भी उनको सिखाया जाए, एक दूसरे के साथ अदब का सलीका भी सिखाया जाए। ये जो वालिदैन हैं कितना अपना खून पसीना बहाकर, और ये जो स्कूल्स के डिपार्टमेंट के लोग हैं कितना मैनेजमेंट लगाकर बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ये हैं कि आज अपनी मनमानी पे लग गए। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो असातिज़ा का अदब व एहतराम अपने बच्चों को सिखाएं। बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट भी करने वाले बनते हैं। आज बच्चा
केयर अनकेयर करके चला जाता है, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा है। इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार वालिदैन हैं। अगर हम तवज्जो देते, हमारा बच्चा माशरे का सबसे अच्छा सोसाइटी का एक आदमी बनता है, एक फ़र्द बनता। तो लिहाजा मैं मुख्तसर अंदाज में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज फिल्म सिटी के ज़रिए से ये तो जो अवार्ड बच्चों में या स्कूल डिपार्टमेंट्स में जो तकसीम हो रहे हैं, उनकी तहनीत, उनकी जो है खिदमात का एतराफ़ के ऊपर जो दिया जा रहा है, ऐसे ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनके पीछे उनकी मेहनतों को देख के यहाँ दिया जा रहा है कि स्कूल्स के इंतज़ामात कैसे हैं, उनकी पढ़ाई कैसी है, और वो लोग जो है एजुकेशन के डिपार्टमेंट को कैसे अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। इसी के एवज में तो ये एड्यू हेल्थ का जो है अवार्ड फंक्शन रखा गया। कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मुस्सलाम वालेकुम। जैसे टीचर बोलती है कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा सकती हूँ, हर किसी के अंदर एक चोरी है, तो वो एक कारोबार भी है। चलिए उनका काम कर रहे हैं, बेहतर करें, अच्छी बात है, मगर शायद हमारे लेबल करने से वो बच्चा गलत डायरेक्शन, गलत हाथों में जाता है, वहाँ से फिर कहाँ जाता है ऊपर वाला जाने, आपको पता भी नहीं चलेगा। करके अगर आपको मालूम हो जाए, जैसे आज मेरे को मालूम हुआ डॉक्टर साहब के ज़रिए और मैडम के ज़रिए कि ये एक बीमारी नहीं है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पे कोशिश ट्राई करते रहे और सही गाइडेंस लिए, हर स्कूल को मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर होनी चाहिए। व्हाट डू यू से मैम? स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जितने हैं, मैं सबको हाईली रिकमेंड करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर नहीं मालूम है तो डॉक्टर मैडम्स हैं, इनसे सजेशन लीजिए कि थोड़ी बहुत कॉस्ट में हम कैसे इनको वीकली या मंथली या ऑन रिक्वायरमेंट बुला सकते हैं तो हम बुलाएंगे। और मैं गोलकुंडा मंडल और शेखपेट मंडल के बिहाफ पे आइटा के मैं फिल्म सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब डॉक्टर अहमद अली खान साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपके पास आई एम श्योर जनरल फिजिकल चेकअप होता होगा, राइट? नहीं होता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं, बाकी परमिशन देना नहीं देना डॉक्टर साहब की मर्जी है। डॉक्टर साहब अगर फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ की भी एक ईयरली वंस तो भी एक चेकिंग के लिए आते हैं, अगर ये नहीं भी जा सकते हैं तो हम किसी को अप्रोच करके हम बच्चों का एक चेकअप करा सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया, अर्ली डायग्नोसिस विल हेल्प हिम, अडल्ट केस में आपको दिख के भी नहीं आएगा, राइट? नहीं तो वो बीमारी। प्रेसिडेंट और पूरे टीचर्स और प्रिंसिपल जो अपना संडे के दिन कीमती वक्त, ये आपका जज्बा है जो आज आप यहाँ पे हैं, नहीं तो आपके पास चॉइस थी कि आप बिरयानी बना के टीवी देखते बैठ सकते थे, मगर आपको फिक्र है, इसी फिक्र की वजह से हम भी यहाँ पे आपको बुलाए। हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ है और हमारी उम्मीद है कि यहाँ से सही मैसेज लेकर के आप वो सबों लोगों में जाएंगे जिनकी ज़िंदगियों को आप टच करेंगे। तो ये उम्मीद के साथ मैं हम सबकी तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंसाइटफुल नॉलेज के लिए जो सेशन साइकियाट्रिस्ट मैडम और आपने दिया है, आई एम थैंकफुल। मैं तो नॉर्मली डॉक्टर से मिलता नहीं हूँ, बट क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, आई एम अ हेल्दी बेबी, ऐसी रीज़न बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर से मिलता नहीं हूँ क्योंकि आई एम हेल्दी बेबी। सही हूँ ना, मैं मेरी माँ का बच्चा ही हूँ ना, तो उनकी नज़र से बोल रहा हूँ। अब आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, वो आपका नज़रिया है। खैर, तो मैं बोल ये रहा था कि डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने अपने हॉस्पिटल के प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी बातें बताई जो आई हैव नॉट सीन एनी डॉक्टर टॉकिंग। जरूर देखी है मैंने, बट एक रियल टाइम डॉक्टर को बोलते हुए पहली बार देखा हूँ। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। फिर से एक बार जैसा केस हुकूमत, आई एम श्योर दे आर कंटिन्यूइंग दैट देयर इज अ लेडी पुलिस और मेन पुलिस, लव पुलिस ज़्यादा दिख रही है हम सबको। अभी हम नीचे बैठ के वही वेरी गुड पॉइंट बोला, आपको जॉब सुने, ठीक है ना, आगे पीछे की चीज़ें वो दिमागी खेती होती है, तो उसको कट द क्रैक बोलते हैं, वो वाली बात। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि इंसाइटफुल नॉलेज दिए हैं और बच्चों तक, कई पेरेंट्स तक ये बात लेकिन तरह थेरेपिस्ट खुल रहे हैं, पहले देखने को भी नहीं मिलते थे। स्पीच थेरेपिस्ट हो या आपका ऑटिज्म का हो या अपने आप को बचाना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या कर रहे हैं उनको करते हैं, वो हमारे हाथ में है, वो आपके हाथ में है, राइट? A bird in hand is better than 100 in sky। इसलिए यहाँ जितने बैठे हैं ना, वो हमारे बर्ड्स हैं। आप माहौल
दुनिया बच्चों की बदल सकते हैं और अच्छी दुनिया बनाने पर आपको उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सवाब भी मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा और आपको उसका रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। किसी की आप ज़िंदगी सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच आसिफ साहब। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद अली ख़ान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फिल्म सिटी हॉस्पिटल की जानिब से मौलाना रियाज़ नक्शबंदी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमारी इस छोटी सी कोशिश के मैं जो है सो हिम्मत अफ़ज़ाई के वास्ते आपकी मौजूदगी बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। हमारी बेसिक एक कोशिश है कि चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल बहुत सारे बच्चों को बहुत छोटी उम्र में अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और कई दूसरे भी जो है सो लर्निंग डिसेबिलिटी जैसा कि डिसलेक्सिया वगैरह हैं, ये सब के जो है सो एक लेबल्स बच्चों के ऊपर लगा दी जा रही है बहुत अर्ली एज में। तो हमारी एक ये कोशिश है कि उलमा के साथ भी जो है सो ये चीज़ इनके सामने भी बात आए और ये पूरे टीचर्स जिसको हम यहाँ पे जमा किए हैं एडू हेल्थ अवार्ड्स के बैनर के अंडर के सब, एक तो सब टीचर्स की हिम्मत अफजाई भी होना है और टीचर्स का इस बारे में ओरिएंटेशन भी होना है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, हर बच्चे की काबिलियत अलग रहती है। बाज़ बच्चे कोई काम में शायद कमज़ोर हैं लेकिन कई कामों के अंदर उनकी तेज़ी बहुत ज़्यादा रहती। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, जिससे कोई भी बच्चे को अपन गलत तरीक़े से लेबल नहीं करेंगे, उसके वास्ते बेसिक ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कोशिश के ज़रिए से आगे हर स्कूल के अंदर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर चाइल्ड की मेंटल हेल्थ की तरफ भी हम तवज्जो दे सकें। थैंक यू रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया एडू हेल्थ अवार्ड के नाम से, जो फेम सिटी हॉस्पिटल के शेखपेट के एरिया में मुनक़िद हुआ। हमारी नज़र में ये एक हॉस्पिटैलिटी की तरफ से, हॉस्पिटल की जानिब से एजुकेशन लेवल पे जो लोग बच्चे मेरिट पढ़ रहे हैं और जो स्कूल्स के लोग मेहनत मशक्क़त करके बच्चों को बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, उनके लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया था। और फेम सिटी की जानिब से मैं डॉक्टर अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बेहतरीन मिसाल क़ायम की और जो बच्चे, जो वालिदैन और जो स्कूल्स के लोग मेहनतों को, मशक्क़तों को रख कर जो है अपने स्कूल्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी बेहतरीन तालीम से नवाज रहे हैं और बच्चों के अंदर और मेहनतों का, मशक्क़तों का एक जज्बा भी पैदा कर रहे हैं और उनको मेरिट की तालीम तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन जो है इक़दाम है। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम के ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एजुकेशन मस्ट है हर बच्चे के लिए। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएं और अगर तालीम ही जो है इंसान को जहालत और इंसानियत का फ़र्क पैदा करती है तो मेरी जानिब से बहुत बहुत डॉक्टर अहमद साहब को भी मुबारकबाद पेश है। और ऐसे ही जितने भी हॉस्पिटल्स के लोग हैं उनके लिए भी मेरा एक मशवरा है कि आप जो है तिब को, यानी जो है मेडिकल लाइन को कारोबार मत बनाइए। आपको जो है आपका एक मकाम व मर्तबा सोसाइटी ने, माशरे ने दिया है और डॉक्टर्स को ख़ास तौर पर मसीहा कहा जाता है। बहुत से हॉस्पिटल्स के हालात ये सुनने को मिलते हैं कि डॉक्टर जो है लूट मार कर रहे हैं और नए नए तरीक़े से जो लोग बीमार होते हैं उनको उलझा रहे हैं। सही ट्रीटमेंट करिए, आपका नाम भी रोशन होगा, आपके ज़रिए से जो है शिफायाब भी मिलेगी। बेशक अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं लेकिन ज़रिया डॉक्टर बनते हैं, इंसान बनता है। मैं फिर एक मरतबा डॉक्टर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि बेहतरीन प्रोग्राम आपने रखा। फेम सिटी हॉस्पिटल की जानिब से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dignity and their privacy and the sole purpose of an informed choice. There are issues with women. That is why in police also you have a complete women wing of women. Even when you are dealing with a woman culprit, it's the right of the woman culprit that the woman officer should deal with her, not some in human humanity. And we have to actually respect that. So that is the first thing that we are trying to do. Second thing is child, because child healthcare is our other critical area. So we wanted it to be, kids don't understand that treatment is beneficial for them. For them, treatment means only pain.
They cannot think that this is good for me, so I'll be patient, I'll control myself, I'll control my emotions, and then I'll participate in the treatment. Whereas you adults, you will trust the doctor, you will support the doctor by being completely, you will accept the treatment completely. That also creates an impact on their ultimate healthcare. So we wanted to integrate play therapy. So we have our pediatric ICU, which is built like a toy shop. So a child can have access to toys so that during pain also they can be in an environment which is supporting them through play. And play, I mean, that's what I mean. Then again, the other, now we are located in Sheikhpet, but it ultimately to achieve what we really want to for the entire women and children of Hyderabad and even surrounding areas, even India, we have to be focusing on presenting many other areas also, hopefully soon, inshallah, God willing. And what we want to create a barrier for them to healthcare, to quality healthcare. So we are trying to, this first and foremost is trust. Is actually the referral system, the commission system. Actually, commission should not be allowed for professional people. How can a doctor charge 10%, 20%, 30% of what the patient pays as commission when they are being already paid a very handsome salary and